Since we have Arvind here, I was hoping we could ask Mr. Kejriwal a few questions, Chief Minister of Delhi, if that's okay with him. Do I have your permission? सबसे पहले I just want to introduce the author. Pran Kurup is a very dear old friend. हम दोनों IIT खड़गपुर में साथ पढ़ते थे, एक ही हॉस्टल में थे, तब से एक दूसरे को जानते हैं. उसके बाद ये अमेरिका चला गया, मैं इंडिया में ही रह गया. लेकिन 10 साल, ऑलमोस्ट 10 years बैक वी अगेन गॉट टुगेदर. मैं आई वेंट टू US फॉर, जब हम NGO में काम किया करते थे तब US गया तो दोबारा मुलाकात हुई. सिंस देन फॉर द लास्ट 10, 12, 15 years वी बीन अगेन इन टच विद ईच अदर एंड रेगुलरली. और स्पेशली अन्ना आंदोलन से फिर से काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ हमारी मुलाकातें बढ़ी. तो मेरे बारे में किताब लिखने के लिए कई लोग आते हैं कि आपके ऊपर किताब लिखनी है, आपसे टाइम चाहिए, बट इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग फॉर मी टू अलाउ एनीवन और आस्क एनीवन टू राइट अ बुक ऑन मी. पर इनको मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी. इन्होंने ये मेरे बारे में काफ़ी कुछ पहले से जानते थे. सो किताब लिखने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि इस दिन इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन पे आ जाना. सो दैट्स हाउ आई एम हियर. इट्स quite an embarrassing thing to be there in the book launch of a book which has been written on you itself. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बाकी पैनल वालों से पूछ लीजिए, मैं बल्कि यहाँ पे ऑडियंस के मैं बाकी पैनल डिस्कशन हो गई, 40 मिनट हुई. अच्छा. तो आपसे 2-4 सवाल करने थे, अगर इजाजत हो तो मैं कर लूँ. प्लीज. अच्छा, जब एक से, कैन आई जस्ट हैव साइलेंस प्लीज? हाँ, लेट्स जस्ट प्लीज मेंटेन अ लिटिल डेकोरम. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज. हाँ, लाइक नाइस सिविलाइज्ड डेलीइट्स. हमारी रेपुटेशन वैसे देश में ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ज़रा सिविलाइज तरीके से, हाँ, नाइसली, क्वाइटली, प्लीज सर. हाँ, कैन वी नॉट डू एनी भगदड़? अच्छा, अरविंद, कैन आई कॉल यू अरविंद? इज दैट ओके? ओके. Are you nervous when a friend of yours says, "Yeah, I'm writing a book on you"? Because now you're a public figure. Because you know how a friend looks at you is not necessarily how the janta looks at you. So Depends on your relationship with that friend. अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर he can write a book on you. अच्छा, so you have full confidence that Yes. he'll be kind to you. Yes. Okay. So I read the book and I found out that IIT you used to do these Sholay scenes as part of ragging, and I think that was a ragging initiation, and you often got to play Gabbar Singh. So I was very, actually I've known you for a long time. I couldn't imagine you playing that role. Did you internalize that role to a great extent? नहीं, ऐसा नहीं है. वो एक्चुअली सीनियर्स बहुत सारी चीज़ें कराते हैं रैगिंग के टाइम में. So that also perhaps was one of the things. I see. Did you ever get to play Hitler? No. Mao Zedong. Maybe someone else got to play Hitler. Okay, no, Fidel Castro. Okay. Then one question regarding what just happened yesterday. Since you are here, I can't let you go. This entire Punjab thing is on the boil. Is Navjot Singh joining you? Is he a CM candidate or is he not? Would you like to just clarify on that? ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने तो कल रिजाइन किया है राज्यसभा की सीट. So he hasn't joined the AAP or anything like That's that. all. That's it. Nothing else. और कुछ भी नहीं है. So there's nothing that we should read more into this? I don't think so. Okay. He has resigned from Rajya Sabha seat because I think all good people should resign from BJP. Okay. Okay. And I admire his courage. But if he were to want to join AAP, would you have a problem with it? He's a or you nice have- man. Definitely the party should give it a sympathetic thought. But he said nasty things about you in the past. कोई बात नहीं. So there were permanent friends or enemies in this. Okay, one more question since you're here. I saw a video clip of the famous Modi Arvind. पर एक चीज़ है कि जो भी आम आदमी पार्टी में आता है उसको पहले आम आदमी बनना पड़ता है. सब आम आदमी है. तो वो तो बहुत ही आम आदमी है. हाँ. वो जिस किस्म के जोक पे हंसते हैं वो बहुत ही आम जोक होता है. तो वो टेंशन वाली बात है. टेंशन वाली बात नहीं. तो आपका मैंने वो हैंडशेक देखा प्रधानमंत्री मोदी के साथ.
वो बहुत ही मतलब उससे जो प्यार जो उगल रहा था वो would you like to just elaborate कि I was very warm. I was very you were warm. very well yes I mean but could you tell us what the camera didn't catch anything that happened before or after नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Camera was able to catch everything. so but what जो आप happened लोगों ने देखा वही सही था. but the inter-council meeting anything that happened that after that how did the meeting go was एक दो Delhi चीजें थी raised up जो एक तो कुछ मुख्यमंत्रियों के फोन बाहर रखवा लिए उन्होंने, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली. yours also हाँ, was, मेरा फोन उन्होंने बाहर रखवा लिया. उस आपका ऐड सुना होगा ना कि रिकॉर्ड कर लेना. interstate council basically consists of members are all the chief ministers and the prime minister is the chairperson. अब उसमें अगर आप कुछ मुख्यमंत्रियों के फोन बाहर रखवा लें और कुछ के ना रखवाएं, सो आई रेज दिस इशू इन माई स्पीच ऑल्सो. मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी से, मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि कुछ मुख्यमंत्री आपकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं? He didn't answer. I said, but what was discussed in the meeting that you couldn't carry? So one is that I found it very strange that why should a few, in fact ममता जी तो protested. ममता जी का भी फोन बाहर सिक्योरिटी वाले रखवा रहे थे. ममता जी ने कहा कि अगर तुम मेरा फोन रखवाओगे तो मैं जा रही हूँ वापस, बिकॉज मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई इमरजेंसी होती है एंड दे वांट टू कॉन्टैक्ट मी, हाउ विल दे कॉन्टैक्ट मी एंड व्हाई आर यू आस्किंग मी टू कीप द फोन आउटसाइड. तो उन्होंने ममता जी का फोन अलाउ कर दिया. दूसरा, उन्होंने ममता जी को बोलने नहीं दिया पूरा. दे कट हर शॉर्ट इन बिटवीन. उसी तरह से मेरे को बहुत इंटरफेयर किया गया, मुझे नहीं बोलने दिया उन लोगों ने. सो अगर मीटिंग में आप ऑपोजिशन की वॉइसेस सुनना नहीं चाहते तो फिर मत बुलाओ. उन्होंने बुलाया था इसलिए हम लोग गए थे. But other than you and Mamta ji, did any other chief minister protest on how it was conducted? मुझे लगता है बाकी तो सारे सीबीआई के जरिए कंट्रोल में हैं. अच्छा. बहुत सारी चीजें बोली नहीं जा सकती. Okay, I have one more question. You spend a lot of time outside Delhi these days. Actually, you know, you weren't part of the panel. The panel we were discussing कि सब लोग राजनीति में नहीं थे, बाद में राजनीति में आए. And full disclosure, I have worked with Arvind for the last 10, 12, no, not for the last 4 years, but on and off, I've been a huge supporter and a trustee in his trust and a friend. So, I just want to put that disclosure out there. But, you know, you've been in Punjab, you've been in Goa, and Delhi, does it suffer when you go out? Are you going to spend a lot more time outside the state? And if so, why? ऐसा नहीं है. मनीष संभालते हैं. Of course. More capable than. I have no doubt. But any reason why we see Arvind out a lot? पंजाब में Outside जाते Delhi? हैं. पंजाब में सबको पता है कि चुनाव होने वाले हैं. And we are fighting elections. गोवा में चुनाव होने वाले हैं. गोवा में भी we are fighting elections. और भी देश में जब भी मुद्दे, जैसे रोहित वेमुला का मुद्दा उठा, मुझे लगता है कोई भी आदमी जो देश के बारे में अच्छा सोचता है, he should sympathize with that issue, he should fight for that issue. तो मैं गया वहाँ पे, रोहित वेमुला के इशू पे गया. और भी जब जब कई बार बड़े मुद्दे उठते हैं तो हम जाते रहते हैं. But as far as Delhi and जब आम आदमी पार्टी बनी थी, हमने कहा था कि लड़ाई अभी सड़क पे थी. अब ये लड़ाई सड़क में भी होगी और संसद में भी होगी, विधानसभा में भी होगी. हमने ये नहीं कहा था कि हम सड़क की लड़ाई छोड़ के और विधानसभा के अंदर जा रहे हैं. तो जब जब देश में कहीं भी अन्याय होगा, हम वहाँ भी जाएंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे और अंदर भी लड़ेंगे. But that doesn't impact Delhi's governance, does it? You know, because if the people of Delhi governance doesn't suffer because of one question: if Delhi has entrusted you with its governance because it gave you a mandate, historic. No one's ever got a mandate like that, I think, anywhere in the country. So, do you think they'll feel a little let down if you aren't here? वही मैं बता रहा हूँ. Delhi's governance doesn't suffer because of me going to Goa or Punjab. Delhi's governance suffer because those who did not get votes, they are trying to interfere in Delhi's affairs. जिनको 3 सीट मिली थी, जिनको दिल्ली के लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था, वो आज दिल्ली चलाने की कोशिश कर रहे हैं बैकरूम से. इसीलिए दिल्ली सफ़र कर रही है. दिल्ली इसलिए नहीं सफ़र कर रही है कि मैं एक दिन उधर चला जाता हूँ, 2 दिन मैं छुट्टी नहीं लेता, बाकी लोग छुट्टी ले लेते हैं. सो मेरे गोवा या पंजाब जाने से दिल्ली सफ़र नहीं कर रही है. दिल्ली सफ़र इसे, आज आपने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि केजरीवाल डज नॉट हैव एनी राइट टू सस्पेंड ऑफिसर्स.
तो अगर मेरा कोई ऑफिसर पैसे खा रहा है तो मैं उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसे जेल भी नहीं भेज सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए दिल्ली सफ़र करती है। दिल्ली इसलिए सफ़र करती है, जो भी हम कोशिश करते हैं नया काम करने की उसमें वो टांग अड़ा देते हैं, इसलिए सफ़र कर रही है दिल्ली। ठीक है, now one question on the transition from an activist, one last question. Let me just add one real quick. I think I've alluded to this a number of times in the book. It is actually a testament to his leadership style that he can afford to go out. He's never scared to share the limelight. He puts people in front, like I was telling you, young people to more senior people. He gives them responsibility and let them run with it. So he's not afraid, I'm not around to share the glory. Let them have their glory, right? Whenever something good happens, he always says, Manish did a great job, or somebody else did a good job. Because of his management style, he's able to go out. Instead of appreciating that, people are complaining, oh, he's going there, he's going here. So a lot of things about Arvind are misunderstood, and I've tried my best to capture some of those things in the book through these examples. Okay, Arvind, I have one question. This is from the transition from an activist to a politician and to the Chief Minister of Delhi now. Has your view of things changed, which you thought were one way as an activist, and when you've got into governance full time, realization that, okay, this is not what it seemed like then? I mean, anything, or is it not convenient to admit or acknowledge that? नहीं, ऐसा नहीं. I think जिन चीज़ों के लिए हम लड़ते थे, this has got further strengthened once we came in the government. Especially एक जो चीज़ हम कहते थे कि अगर करप्शन कम हो जाए तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है. वो हम बार बार उस टाइम कहा करते थे, and that has really got strengthened once we are inside the government. But the public perception is, can we have silence, please? It's polite to conduct your conversations outside the room, please. Yeah? Can we do that? Thank you so much. No, but what I'm saying is that from a regular आम आदमी's point of view, आप तो मुख्यमंत्री हैं ना, मुख्यमंत्री कोई चीज़ होती है, तो मुख्यमंत्री आप मोदी जी को भी समझाइए, मुख्यमंत्री चीज होती है. नहीं, वो समझते ही नहीं, मुझे मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है वो. लेकिन जब आप राजनीति में नहीं थे, तब अगर आपको लगता था यार ये क्यों नहीं बदलता, ये क्यों नहीं बदलता, अब आपको लगता है कि बॉस कई चीजें नहीं बदली जा सकती क्योंकि सबकी सहमति चाहिए और सबकी सहमति मुश्किल है. नहीं, सब कुछ बदला जा सकता है अगर आप जनता को साथ लेके चलें. समय लग जाता है, कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लेट होती हैं. ये लोग दिल्ली सरकार में जितना मर्जी टांग अड़ा लें, लेकिन जिन चीज़ों को हम लेके चले हैं, देर सवेर सारी पूरी होंगी, सब कुछ पूरा होगा. लोकपाल बिल भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन सारी चीज़ें पूरी होंगी. अच्छा, तो लेकिन क्या चीज़ें थोड़ी लेस कॉम्बैटिव होने से क्या फ़ायदा हो सकता है दिल्ली को, कि अगर अरविंद केजरीवाल की एक कॉम्बैटिव इमेज है कि भाई देयर इज ऑलवेज अप फॉर अ फाइट विद मोदी, डू यू थिंक जैसे मुझे क्या नहीं करना चाहिए था जिससे मोदी जी खुश हो जाते हैं, व्हाट शुड आई नॉट हैव डन, मैं वो नहीं करूंगा. ओके, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. साइकोपैथ नहीं बुलाना चाहिए था. अच्छा, आप एक बार उनसे बात कर लो कि वो साइकोपैथ वाला कमेंट वापस ले लो तो आप दिल्ली चलाने दोगे. अच्छा खैर, आई कांट थिंक ऑफ क्या नीचे करना चाहते थे. एक और सवाल है मेरा ऑन, आप हमें काम ना करने दें, आप रोज हमारे एमएलएस को पकड़ पकड़ के जेल में डालें, आप हमारे ऑफिसर्स के ऊपर झूठे केसेस लगाएं, आप हमारी एंटी करप्शन ब्रांच को छीन लें, आप हमारी सारी फाइल्स पे ऑब्जेक्शन रेज करें और हम लोग चुपचाप बैठे रहें. दैट्स व्हाट यू वांट. वी विल फाइट बैक. जैसे मैंने अभी जब परसों एक मिनट मैंने एग्जाम्पल दिया था कि किसानों की जमीन दिल्ली सरकार एक्वायर करती थी पहले, 54 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा देती थी. दिल्ली में 54 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से आपको कहीं ज़मीन नहीं मिलेगी. तो किसानों का ये मुद्दा था. मार्केट रेट 3 करोड़ रुपए था. हमारी सरकार ने आने के बाद ऑर्डर पास कर दिया कि अब किसानों की ज़मीन 3 करोड़ रुपए एकड़ पे एक्वायर की जाएगी. मैंने ऑर्डर पास कर दिया. एलजी साहब ने अगले दिन ऑर्डर पास किया कि मैं मुख्यमंत्री के ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ. एलजी साहब को क्या तकलीफ थी? जब सरकार पैसे दे रही थी, किसान खुश थे, किसान बहुत खुश हो गए चारों तरफ कि भाई अब हमारी ज़मीन अगर एक्वायर होगी तो. एलजी साहब को क्या तकलीफ? तो एलजी साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, मैं मुख्यमंत्री के ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ. तो अगले दिन मैंने भी ऑर्डर पास कर दिया कि मैं एलजी साहब के ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ. तो अब स्टेटस क्या है? अब मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? लेकिन आप अभी कहते हो लड़ता बहुत है, तो वो किसानों के लिए लड़ता हूं मैं.
अब अपने लिए थोड़ी लड़ता अब हूँ। स्टेटस क्या है उस ऑर्डर का? अभी फिलहाल हमारा ऑर्डर लागू है, लागू है। हमने जमीन के पैसे दिलवाए हैं किसानों को। अच्छा, तो अब मैं जब भी लड़ता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, उनकी नौकरी के लिए नहीं लड़ता, अपने लिए नहीं लड़ता, मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। ठीक। अच्छा, एक और सवाल है कि जब एज एन एक्टिविस्ट आपकी एक बहुत प्रॉब्लम थी, ये जो एक of one identity, and this is a slightly long question, so indulge me. I personally think as any a party to expand, people associate with individuals. People don't associate with organizations or philosophies. Human beings associate with individuals. That's why whether it is a Trump, whether it is a Modi, whether it is a Arvind Kejriwal, will be a bigger vote getter than an idea or a party. And I have statistics to back that the world over. Now, whether it is Goa or Punjab, the fact is that Arvind Kejriwal will get more votes than AAP. If the requirement for Arvind Kejriwal is going to be there, which is why there will be a requirement of yours to go to those states. Do you think that was a reality that maybe in your more idealistic days as an activist, where you thought that, why is it an individual led? You have come to realize that is inevitable. You cannot break that. So पहले हमने क्या बोला था? No, what I'm saying is, therefore, your requirement as an individual, if you're the vote getter, you will have to be in all those states. And there was this tendency to look upon individuals, whether it is, be a Gandhi-led party or a this-led party, or isn't that inevitable? And would you say you realize that? लीडरशिप के साथ तो लोग एसोसिएट होते हैं, there's no doubt about it. That often becomes bigger than the party. There's an inevitability to that the world over. That is also a responsibility. कि लोग अगर आपके नाम से वोट देते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो आप प्रॉमिस करें उसको फुलफिल करें, चुनाव के बाद उसे जुमला ना बोलें। सो अगर गोवा में जाके मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी आएगी तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना, जो भी वहाँ पे लीडरशिप होगी, टू इंश्योर दैट दे स्टे ऑन ट्रैक एंड टू इंश्योर दैट। So you do acknowledge there's an inevitability to that individuals ये तो to होता ही become. है, ये तो नहीं मतलब But in the I'm sense saying, the did you people think- look up to the leadership. But has your view on that changed from activism to politics? I mean, from outside, did you तो मैंने think it is पहले not? ऐसा कुछ उससे उल्टा नहीं बोला था। I never said anything contrary. Well, not specifically, but I think by generally what I saw you saying that you thought, I mean, you wanted an idea to be bigger than an individual. Idea is always bigger than individuals. But not while gathering Individuals votes. convey those ideas. अपने अपने तरीके से उन आइडियाज को कन्वे करते हैं। टुडे व्हाट इज इट दैट वी रिप्रेजेंट? हमें लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करते, हमारी ईमानदारी को पसंद करते हैं। वी रिप्रेजेंट ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, वी रिप्रेजेंट क्लीन पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट द पीपल लाइक। So saying, कल को अगर मैं पैसे खाने लग जाऊं तो अरविंद केजरीवाल को भूल जाएंगे लोग। और इट party इज द आइडिया इज ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, इसीलिए वो हमें पसंद करते So हैं। your view of politics hasn't changed in the last 6 years. Your It's transition. got from- strengthened whatever we believed in. So you don't think anything is contrary to what you thought from the ऐसा outside? लगता तो नहीं है। Okay. Do you have time for one more question? Your relation with the media has always been one of love-hate. Either they love you and you hate them, or you love them, they hate you, or both hate each other, both love it's each other. love and always- hate. We love them, but they hate us. Wait, let me finish. No, I don't think that's fair. There are, everyone has the same problem. Even Mr. Modi says everyone hates. There are certain entities that love one party, there are certain entities that love the other party. अच्छा कौन सी किसको? I think it is clear to me that, Times and Z are extremely pro-Modi. I think it's clear to me that someone like NDTV is more left. They'll be kinder to you or kinder to the Congress. I think that's inevitable. We don't have to hide behind that, It's there. But everybody complains, everybody hates them. Do you think this thing of, I'm a victim, sure there are people who hate you, but there are also people who love you. Do you think this talking in absolutes on the media is like old news now? It is, there will be people who love and there will be people who will hate. It's inevitable. मुझे लगता है आज मीडिया सबसे ज़्यादा खतरे में है, which is the biggest, perhaps the biggest problem in the country. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया दिखा नहीं पाता। मीडिया को या तो डरा दिया गया है और या उनको खरीद लिया गया है, काफ़ी बड़े सेक्शन ऑफ मीडिया को।
और ये आज देश की सबसे, लेट्स नॉट टॉक ऑफ इंडिविजुअल चैनल्स एंड लेट्स नॉट टॉक ऑफ, You have to be big and not do that, I can. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि देश की यही है कि द फोर्थ पिलर इज इन डेंजर. But you think even the fourth pillar gets way more trash than it deserves? आप जनता From से पूछो politicians? जाके. जी, जनता जनता तो आपको सबको बता गाली देगी. देती है. जनता तो सबको नहीं, गाली ऐसा नहीं है कि जनता सबको गाली देती है. आई मीन जनता जनार्दन है, सो जनता तो है. भगवान है. जनता सबको, नहीं, जो जनता जनता इंसान है. जनता भी गलती कर सकती है. भगवान मत बताइए जनता को. निक्कू नहीं कर जनता- सकता. हाँ? निक्कू नहीं कर सकता. देखो, मैं आप नहीं कर सकते. जो मैं तो जनता कर सकता हूँ. का परसेप्शन है मीडिया के बारे में, वो आज परसेप्शन यही है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. बिहार चुनाव हुए. बिहार चुनाव में एक चैनल का बहुत बड़ा एंकर रोज जो प्राइम टाइम पे आता है, बिहार चुनाव के 15-20 दिन पहले उसका रात को फ़ोन आया मेरे पास कि आज मैं एक गांव में था और गांव में एक रिक्शा वाले से बात की. उस रिक्शा वाले से पूछा भाई कौन जीतेगा, तो रिक्शा वाले ने कहा नीतीश जीतेगा. तो इसने कहा कि मोदी नहीं जीतेगा. तो रिक्शा वाले ने पूछा दिल्ली से आए हो? अच्छा. तो बोला हाँ. तो बोला टीवी में काम करते हो? तो बोला हाँ. तो बोला आप सबको तो मोदी ने अपने, उसने कोई शब्द यूज़ किया, अपने उसमें लिया हुआ है. हाँ, भोजपुरी में उसने अपने उसमें लिया हुआ है, कब्जे में लिया हुआ है. तो बिहार के गांव का आदमी भी जानता है कि सच्चाई क्या है. जी, मैं आपको तो बताऊं. एक मिनट. सो पीपल ऑफ द कंट्री नो, अगर मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस होता, हम ना पहला चुनाव जीतते और ना दूसरा चुनाव जीतते. दोनों चुनाव के पहले मीडिया ने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. फर्जी स्टिंग चलाया था चुनाव के 3 दिन पहले. फर्जी स्टिंग चलाया था कि हमारे 11 एमएलए पैसे खा रहे हैं, फलाना ढिमका. दूसरे चुनाव के पहले उन्होंने पता नहीं क्या क्या चलाया था. सो इस दे द बेस्ट पार्ट इज द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर वेरी इंटेलिजेंट, और वो डिसर्न करते हैं कि सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है वो सच है कि झूठ है, वो समझ जाता है. Fair enough, but I do think media can't be spoken in absolute blocks. There are people who are unkind at certain times, and it keeps moving. It's a dynamic situation. But speaking of that, you appoint. That was the last question. Okay, one more last. Now that I can't just let you go now, otherwise I'll be told, देखो ये भी बिका हुआ है, अरविंद का दोस्त है, कुछ पूछता ही नहीं. तो you had appointed, many people in the media into those directorships or councils in colleges. That why should that not be seen as a way of influencing media? वे उसमें ना तो पैसे मिल रहे, ना उसमें कोई पर्क्स मिल रहे. आप अगर किसी कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड में अच्छे लोगों को अपॉइंट करते हो, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? Do you don't think it's a little improper because किसी को भी अपॉइंट कर दो, आप कहोगे इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. नहीं, लेकिन मीडिया तो रोज कमेंट करता है ना पॉलिटिशियंस पे. अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंट को कर दो, वो तो रोज कमेंट नहीं करता आप पे. मीडिया वाले तो रोज आप पर कमेंट करते हैं, तो वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमेंट इंटरेस्ट कर सकते हैं. उसमें से कई लोग हमारे खिलाफ लिखते हैं, हमने तो कभी बोला नहीं. लेकिन अच्छे लोगों को, और उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की. इट्स अ गवर्नमेंट पोस्ट. कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में अच्छे अच्छे लोगों को आना चाहिए. उसमें पत्रकार भी हो सकते हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, उसमें हर किस्म के लोग हो सकते हैं. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ. You don't see it be seen as a conflict of interest. It is just improper to appoint कई someone. लोगों ने खबरें छापी, मैगजीन्स ने खबरें छापी, वो छापते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं एक चीज जानना चाहता हूँ. आप मीडिया वाले सारी हमारी कमी क्यों निकालते हैं? हमने 526 करोड़ का ऐड दे दिया, 526, जबकि सच्चाई ये थी 75 करोड़ का ऐड दिया था. और मैंने एक जगह बोला भी था कि जितना पैसा मोदी जी के कपड़ों पे खर्च होता है, उससे कम पैसा हमारे ऐड के बजट पे खर्च होता है. उसका मेरे पास सारी कैलकुलेशंस हैं उसकी, कि मोदी जी के कपड़ों पे कितना खर्च होता है और हमारे ऐड पे कितना का. एनीवे, लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा कि उन्होंने स्वच्छ भारत पे कितना खर्च किया, ये जितने होर्डिंग खट्टर साहब के दिल्ली में लगे हुए इस पे कितना खर्च हुआ, ये कभी उठाया किसी मीडिया वाले ने? इसमें हिम्मत नहीं है. उठाया तो है, हमने उठाया. न्यूज लॉन्ड्री ने उठाया, हमने पूरा हमने उठाया. सर, न्यूज लॉन्ड्री को कितने लोग देखते हैं? पता नहीं, जितने भी देखते उठाया तो है ना हमने. मैं ये बोल रहा हूँ. लेकिन एक बार निरूपा रॉय ने अमिताभ बच्चन को बोला दीवार में, बेटा दूसरों के पाप गिनाने से खुद के कम नहीं हो जाते. मैं
हमने गलत काम क्या किया है? I'm just saying whether they did it to the और others or not. हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको गलत लगता है। आप लोगों की हिम्मत है खट्टर के ऊपर आवाज उठाने की, आप लोगों की हिम्मत है पूरे तेलंगाना के ऐड पूरे देश के अंदर छपे थे, क्यों नहीं उठाए उसके ऊपर आवाज, क्यों नहीं उठाई? हमारे ऊपर आवाज उठाते हैं और हम जवाब देते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं, मीडिया में आके जवाब देते हैं, हर इंटरव्यू में जवाब देते हैं, सब जगह जवाब देते हैं। वो लोग तो जवाब ही नहीं दे, जवाब तो तब देंगे जब उनसे पूछा जाएगा। उनसे पूछने की औकात नहीं है किसी मीडिया की। जी हम, हाँ, लेकिन हम तो पूछ लेते, हमें इंटरव्यू देते नहीं वो। If you enjoyed that, click up here to support us and down here to subscribe. Be sure to check out our older episodes and the other stuff we do, like Can You Take It, I Agree, panel discussions, comics and animations, and much, much more.